कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ BJP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಹಾಗೆ AAP ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಠ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ BJP ನಾಯಕ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಗೆದ್ದರೆ ರೋಡನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೆನ್ನೆ ಥರ ನೈಸಾಗಿರುವ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಮುಂಬರುವಂತಹ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ ಕಲ್ಕಾಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕೆನ್ನೆಯಂತೆ ನೈಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗಂತ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಮೇಶ್ ಬಿಂದೂರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಮೇಶ್ ಬಿಂದೂರಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, BJP ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನತನ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಳಕು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ರಮೇಶ್ ಬಿಂದೂರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ BJPಯ ಮುಖವಾಡ ಕೂಡ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಬಿಂದೂರಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಹಾರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಕೆನ್ನೆ ಥರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು. ಆಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಲಾಲು ಹೇಳಿಕೆನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ RJD ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷನ ಹೀಗಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು BJP ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। 24 में बोला, उसको दोहराया। और हेमा जी के बारे में लालू जी जो इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द, और प्रियंका गांधी एक विशेष VIP कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है, वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार, राजकुमार होगा, महिला होगी, गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है। जैसा कोई आगे से बोलेगा, प्रधानमंत्री के पवन खेड़ा जी जो रफूगर हैं कांग्रेस के, जो केवल चाटुकारिता का कारण राजनीति में है, शीला जी के जमाने में सबको मालूम है कैसे दलाली के करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं पवन खेड़ा जी से, प्रधानमंत्री जी की पिताजी के बारे में जो टिप्पणी की, पवन खेड़ा माफी मांगे। ये पहले माफी मांगने की, वरना जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ईंट का पत्थर हमेशा, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा। बयान आपका गलत था, मतलब आपको नहीं लगता कि बयान आपका गलत है? आपको लगता है हेमा मालिनी जी महिला है कि नहीं है, मुझे बताइए। हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? पहले जिसने गलती की पहले वो माफी मांगेगा ना। पहले अगर ये गलती है और किसी ने माफी मांगी, हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? एक साधारण परिवार की निकलकर एक महिला और एक दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है, वो महिला नहीं है। और एक खानदान में पैदा हुई,
वो महिला है, हाउ इज इट पॉसिबल? सर सवाल ये उठ रहा है कि ये जस्टिफाइबल है कि आप उन्होंने अगर कोई गलती करी है तो आपकी तरफ से भी ऐसा जवाब आए जो जब जिसको दो जगह जिसको डिस्प्यूट महिला विरोधी जब बोल रहे दो हैं। जगह डिस्प्यूट पैदा होता है तो लोग कहते हैं आपने ये गलती करी, आप इसको रेक्टिफाई करें, दूसरा भी करेगा। आप रेक्टिफाई कांग्रेस करे तो घर भी रेक्टिफाई होगी। अलका लामा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है दोनों महिला विरोधी हैं और इन दोनों के भी साठ काट है। किस तरीके से इस आरोप को आप देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग। महिलाओं के बारे में जो योजना केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई है, झूठे आश्वासन नहीं देना, झूठे किसी के वायदे नहीं करना, ये केवल बीजेपी करती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों निश्चित रूप से एक खानदान का परिवार का व्यक्ति है, तो वो महिला भी होगा, वो पुरुष भी होगा, वो चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे जवाहरलाल, वो राजकुमार भी होंगे। और देश में 140 करोड़ लोग जो सामान्य परिवार से जी कर आते हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी टिप्पणी करेगा और ये कुछ भी लोग, ये सवाल हो ही नहीं। भारत में 140 नागरिकों का सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस लालू जी से या कांग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ लालू की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो माफी मांगे। हेमा मालिनी जी एक भारत की बेटी है, क्या वो दक्षिण भारत की है? तो वो बेटी नहीं है हमारी, वो बहन नहीं है हमारी। तो इसलिए सभी बहन समान है, सभी सम्मान के योग्य हैं, सभी इज्जत के योग्य हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस स्थिति स्पष्ट करे कि लालू उनकी कैबिनेट में मंत्री है। कितनी बार माफी मंगवाई? क्योंकि वो हेमा मालिनी जी थी, वो एक विशेष घराने की बेटी नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस को कभी याद नहीं है हेमा मालिनी के बारे में, वो करें एक्शन का रिएक्शन। आपको लगता है ये हिपोक्रेसी ही है, उनके पास कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार किया, जवाब है नहीं कोई, अब वोट कैसे मांगेंगे? अब वोट इसी प्रकार से ऐसे ही नौटंकी करके मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस परिवार ने, नेहरू परिवार ने इस देश को 70 साल में बर्बाद की है। वो ये चाहते हैं उस परिवार की चाटुकारिता करते हुए लोग उनको वोट दे देंगे। उनकी गलतफहमी है। उस परिवार से देश अब नफरत करता है। उस देश ने देश का पार्टीशन करा है। उस परिवार ने देश के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम से बहुसंख्य समाज को बर्बाद किया है। तो उस परिवार के नाम से रोटी सेकेंगे। अब देश उस परिवार को नकार चुका है। 24 में बोला, उसको दोहराया। और हेमा जी के बारे में, लालू जी जो उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द। और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है। वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार, राजकुमार होगा, महिला होगी। गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है